ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन स्टार्ट किया था, करा था ना। yesterday we started discussing a new chapter which was current electricity, if you remember, or I defined the value of current, right? कि current क्या होता है? तो current is basically the rate of flow of charge, and which I told you कि it can be written as equal to dq by dt for instantaneous current, and from this we can write dq is equal to I dt. This is the value of charge, right? And if you want to find out the net charge, you can integrate it simply to calculate the net charge. For example, अगर मान लो कि मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ आई गिव यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, सिंपल सा क्वेश्चन, नॉट अ बिग टास्क टू सॉल्व फॉर, एकदम आसान सा क्वेश्चन कि अगर मैं आपसे कहूं कि इन अ सर्किट करंट फ्लोइंग is given as 4t plus of 2, ठीक है, current is given as this amperes. Current is given by this equation where 4t plus of 2, where t is time, where t is time, t is time. तो आपको करना क्या है? You have to find out, calculate total charge flown between t equal to 0 to t equal to 2 seconds. ठीक है, what is the total charge, what is the total value of charge that has flown from t equal to 0 to t equal to 2 seconds is your question. How will you try this? How will you solve? कैसे सोचोगे? How will you solve, beta? Integrate for t plus Of t course, inside of t. very good. Of course, you will have to integrate this. The reason is very obvious. You need to integrate it because the current is varying with time, and as current is variable, hence you will have to integrate this quantity. तो integrate करके देखो कितना आंसर आ रहा है. कर सकते हो आप. You can integrate obviously. तो करके देखो कितना आ रहा है. I is equal to 40 plus t. So you have to find the charge. So dq will be simply equal to I dt without any doubt. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि dq is equal to I, the value of I is 4t plus of 2, 4t plus of 2 dt. So for net charge, you will just integrate this whole quantity, that is, you will integrate 4 to dt. From where to where? You will integrate it from 0 to 2. तो इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो दिस विल बी 4t dt प्लस ऑफ 2 dt फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड्स एंड ऑब्वियसली फ्रॉम 0 से 2 सेकेंड्स. तो चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4t का इंटीग्रेशन आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 2 प्लस ऑफ 2 एज इट इज dt का integration will be t from 0 to 2. Just put the limits and get the answer. This 2 and this 4 can be cancelled out. So this will become 2. The value of t upper limit is t is 2. So put that 2 in the value of t. So this will become 2 squared minus of 0 plus of 2 multiplied by 2 minus of 0, and hence the value of the charge will be 2 to the 4 to the 8 plus of 4, that is equal to 12. This is the value of charge, and because I have given you the unit of current to be ampere, so I'll take the charge as coulombs. Okay, this is the charge that will flow in 2 seconds if the current is given as 4t plus of 2. Can we proceed now? Yes. Okay, after this we need to define few basic quantities and few basic things. You may have heard about the Ohm's law.
if you remember, you may have heard about Ohm's law. Now, what is this Ohm's law and what information do we gather from this Ohm's law? Let us discuss that. Then we will be discussing about the resistance and all those things. Then we will be discussing about the current density and all those stuffs. तो देखो, ये कुछ definitions है जहां हम discuss करेंगे. तो सबसे पहला आज का definition लिखिए. सबसे पहली definition is current density. Current density. ठीक है? Current density. What is this current density? So obviously from this term itself you can see that this has a term of density, current density. Obviously it must be talking about the current given in a region, okay, or the amount of current in a particular region, that will be simply called as current density. अब इसको हम define कैसे करते हैं current density को? पहले तो आप इस बात को समझो. How do we define the term which is called as current density? तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज नोन एज करंट डेंसिटी. पता नहीं क्या बोले सर. मान लो इफ दिस इज सम क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, आप इस बात को ऐसे समझो कि इफ आई हैव दिस एज अ कंडक्टर, a cylindrical conductor, and where I assume this as to be my cross section of that conductor. तो इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू obviously there must be some charge flowing in a given time. कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा और इस क्रॉस सेक्शन का मान लो कि द एरिया इज इक्वल टू ए. तो हाउ मच ऑफ द चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन इन अ गिवन थ्रू दिस एरिया इन अ गिवन टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. समझ में आ गई बात? दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. क्या मतलब हुआ सर? करंट डेंसिटी को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो करंट डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय जे. आइदर यू कैन राइट कैपिटल जे और स्मॉल जे, डजंट मैटर. This will be written as charge flowing per unit area per unit time. Per unit area per unit time through a given cross section is basically called as current density. तो obviously बेटा एक बात बताओ कि this charge by time, can I write it as current? Q by T is current, right? Yes. So of course current density also can be written as I by A. This current density can be written as I by A. Is it clear? तो करंट डेंसिटी को अगर और नॉर्मल वे में हम डिफाइन करें तो वी कैन सिंपली से दैट करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया. मतलब कितने एरिया में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज करंट डेंसिटी. अच्छा मुझे एक बात बताइए, व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इज द एरिया? एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट काइंड ऑफ क्वांटिटी इट इज? Scalar. Area is a vector quantity. You must have seen this in vector quantity. Yes, sir. You must have seen this in Gauss law, right? In Gauss law, I told you that area is a vector quantity and its direction is always perpendicular to the surface. Okay, so area is a vector, right? And current is a scalar quantity without any doubt. Tell me one thing. If you divide a scalar by a vector, ये इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं. करंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, J multiplied by. क्लियर है बेटा? Yes. Tell me one thing. Area is a vector quantity. ठीक है, करंट इज a scalar quantity. तो मुझे एक बात बताओ कि what kind of quantity can this J be? J कैसी क्वांटिटी होगी? What kind of quantity is current density? Is it a scalar quantity or vector quantity? Vector. सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो. You are whispering right. देखो मेरी बात सुनो. J is obviously a vector quantity. अब क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ सकता है कि why J is vector quantity. देखो बेटा, अगर इफ यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर क्वांटिटी, मान लो कोई वेक्टर है आई कैप, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, दिस 4 इज अ स्केलर, दिस आई कैप इज अ वेक्टर, तो रिजल्ट विल बिकम अ वेक्टर. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, इसी sir. तरह से यहां पे देखो, ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर जे स्केलर होगा, अगर मान लो जे स्केलर होगा, तो दिस रिजल्ट विल बिकम अ वेक्टर. दैट मींस करंट विल बिकम अ वेक्टर. बट करंट वी नो दैट कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो भाई एक बात तो ऑब्वियस है कि वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट विल ऑलवेज बी अ वेक्टर. बट हमें मालूम है कि रिजल्ट जो मुझे मिल रहा है दैट इज अ स्केलर. ठीक है, इट्स अ स्केलर रिजल्ट. तो ऑब्वियसली स्केलर रिजल्ट आपको कब मिलता है? स्केलर रिजल्ट आपको तब मिलता है कि जब आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हो. मतलब इफ यू हैव टू वेक्टर्स and if you take the dot product of two vectors, तो result is always a scalar. Is it right or not? Yes, sir. नहीं आई बात समझ. मतलब करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड हाउ कैन यू टेल दैट?
because current is a scalar quantity and this current is basically the product of two things. One is current density and the another one is area vector. तो both has to be vector, तभी current scalar हो सकता है. तो current is a scalar quantity. तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि current is equal to JA multiplied by cos theta, because the dot product of two quantities is A dot B cos theta. Do you remember that? Yes, sir. Now the question arises what this theta is here. So I'll try to explain you this by the diagram. देखो मेरी बात सुनना. अगर मान लो if I take some cross section like this, अगर मैं क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लूं, if I take the cross section this way, तो अगर मैंने क्रॉस सेक्शन ऐसे ले लिया तो मुझे एक बात बताओ कि ये क्रॉस सेक्शन है. अब मुझे एक बात बताओ, who will tell me what is, अच्छा, और आप ऐसा इमेजिन कर लो कि this is the direction of current, this is the direction of current. कौन मुझे बताएगा, who will tell me कि what will be the direction of area vector for this cross section जो मैंने ऐसा लिया है. एरिया वेक्टर इसका राइट की तरफ होगा या नीचे होगा, कुछ एंगल पे होगा? कुछ एंगल 90 डिग्री एरिया वेक्टर है ना? नहीं, हाँ, यस ऑफ कोर्स, इस सरफेस से 90 डिग्री पे. तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा और ये वाला एंगल थीटा है. ठीक है, एरिया वेक्टर ऐसे होगा और ये वाला एंगल थीटा है. क्लियर हो गई बात? इसका मतलब समझते हो आप? इसका मतलब यह है कि यू हैव टू टेक दैट कंपोनेंट ऑफ एरिया which is perpendicular to the flow of charge. मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनना. अगर मान लो कि मैं आपसे ये कहूं बेटा, अगर मैं आपसे ये कहूं, मेरी बात सुनना, कि ये कोई सरफेस है, ये सरफेस ऐसे है, ठीक है, तो इस सरफेस का आपको वो कंपोनेंट लेना है. मेरी बात सुनिए बेटा, सब सुन पा रहे हैं? इस सरफेस का आपको वो कंपोनेंट लेना है जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से परपेंडिकुलर हो. ये एरिया का कंपोनेंट है, ये एरिया का वो कंपोनेंट है विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट. डिड यू अंडरस्टैंड? अगर आपका एरिया ऑलरेडी परपेंडिकुलर है तो कोई मसला ही नहीं है. तो आपका थीटा जो करंट और एरिया वेक्टर के बीच का थीटा होगा दैट विल बी जीरो, और आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो. बट अगर दोनों के बीच का एंगल जीरो नहीं है तो फिर आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वेयर थीटा विल बी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन इन विच द करंट इज फ्लोइंग. इज इट डन? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? किसी को कोई दिक्कत? हो गया बच्चे? यस सर. मेरी बात सुनो, एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. उसके लिए मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा. एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए. इसको मैं इरेज कर रहा हूं, बाकी लोग जल्दी ध्यान से देखें. सर मान लो कि मैं आपसे कहता हूं कि दिस इज द कंडक्टर, दिस इज द शेप ऑफ द कंडक्टर दैट आई एम हैविंग. ठीक है, ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में का ऐसा शेप है सच दैट कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज समथिंग A1 और यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज समथिंग A2. क्लियर है बेटा? ये उसी कंडक्टर के दो पोर्शंस मैंने लिए हैं, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज नॉट सेम. मान लो ये P पॉइंट है, ये पॉइंट Q है, तो दोनों पॉइंट पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट सेम. क्लियर हो गई बात? टेल मी यस और नो. यस सर. ठीक है. अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि स्टेडी करंट, स्टेडी करंट, स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर. इस कंडक्टर से कैसा करंट फ्लो हो रहा है? A steady current is flowing through the current conductor. बात समझ में आ रही है? स्टेडी करंट का कोई मतलब बता सकता है? What do you understand by the steady current, by the term steady? यूनिफॉर्म हाँ बेटा, नहीं सुन पाया, फिर से बोलो. यूनिफॉर्म यस, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म. तो मुझे एक बात बताओ कि अगर बेटे यहाँ पर करंट आई है तो यहाँ पर भी करंट आई होना चाहिए. तो एक बात बताइए कि अगर इन दोनों का करंट डेंसिटी देखिए, मान लीजिए ये एरिया A1 पे करंट डेंसिटी इज J1 और इस एरिया A2 पे करंट डेंसिटी इज J2. तो
एक बात सोचो, स्टेडी करंट, और मैं ऐसे मान लेता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए ये I1 है और I2 है, बट अगर मैं आपको कहूं कि करंट अगर स्टेडी है, इसका मतलब है कि I1 मस्ट बी इक्वल टू I2 फॉर स्टेडी करंट। स्टेडी करंट तो तभी होगा ना जब I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो। टेल मी यस और नो। Yes. I1 शुड बी इक्वल टू I2। और I को आपने अभी लिखा था, I को करंट डेंसिटी के टर्म्स में आपने कैसे लिखा था? तो यू जस्ट रोट द करंट एज द प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। तो इसका मतलब बेटे J1 इंटू A1 इज इक्वल टू J2 इंटू A2 लिख सकता हूं या नहीं? यस सर। Yes. ठीक है, इसका मतलब बच्चे क्या हुआ? J1 अपॉन J2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। इसका मतलब समझे आप? ये एक रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये हो गया कि करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब करंट डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। समझ में आई बात? करंट डेंसिटी of any cross section या current density through any cross section is always inversely proportional to that area of that cross section. Did you understand? करंट डेंसिटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या मतलब? जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा वहां पर करंट डेंसिटी कम होगी, और जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगी, सो दैट करंट रिमेन्स स्टेडी। करंट कैसा रह सके? स्टेडी रह सके। इस पॉइंट को जल्दी से नोट करो। टू मेक द करंट स्टेडी, if the area of cross sections are not same, then also then in that case current density would be inversely proportional to the value of area. Done? Yes. Okay, moving on. चलो नेक्स्ट पे आ जाए। जैसे अगर मान लो इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, आप लोग ट्राई करेंगे, मुझे बताएंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, देखता हूं आप कर सकते हैं या नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। आई हैव ऑल द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व। मेरा क्वेश्चन ये कि सर मान लो यहाँ पर और यहाँ पर, आप एक बात समझना, यहाँ पर यहाँ पर आपसे ये बोला गया है, यहाँ पर आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर का जो रेडियस है, दिस रेडियस ऑफ द कंडक्टर, इस पॉइंट पे रेडियस इज इक्वल टू 2 मीटर। आपको बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडियस एट दिस पॉइंट और ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन। अगर यहाँ पर जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है, करंट डेंसिटी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू कितना मान लो, चलो छोटा ही सा कुछ रिजल्ट मान दें, 10। ठीक है, करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी की है? 10 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आपको बता, यहाँ पर करंट डेंसिटी आपसे बोला गया कि J2 इज इक्वल टू, ऑब्वियसली यहाँ पर करंट डेंसिटी एरिया कम है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, और वो देख के समझ में आ रहा है आपको कि, या तो आप ऐसा कर लो, आप एक काम करो, आपको क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ J2। मैं R की वैल्यू दे देता हूँ, क्वेश्चन में स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ। R यहाँ पर 1 मीटर है, आपको बताना व्हाट विल बी द करंट डेंसिटी एट दिस पॉइंट। करो तो जल्दी से। और करंट स्टेडी है, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट, स्टेडी फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, 1 मार्क का क्वेश्चन, जल्दी करो। What will be the current density at the another cross section if the current density at this cross section is 1 it is 10 ampere meter square? $20 amp. हो गया? सारे बच्चे प्लीज बताएं। यस सर। वेरी गुड। चलो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है। सिंपली अभी जो फॉर्मूला बताया, यू जस्ट हैव टू यूज दैट फॉर्मूला।
इज इट राइट? तो अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे? यहाँ पर की करंट डेंसिटी, यू हैव ऑलरेडी द करंट डेंसिटी यहाँ पर, एंड यहाँ पर द रेडियस इज गिवन नॉट द एरिया, रिमेंबर दैट रेडियस गिवन है नॉट द एरिया। तो आप इसको कैसे लिखोगे? यू विल राइट इट एज J1 इंटू पाई, मैं इसको R1 कह लेता हूँ मान लो, और इसको R2 कह लेता हूँ, तो पाई R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू J2 मल्टीप्लाइड बाई पाई R2 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे आप। J1 मुझे पता है कि 10 है, पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट, R1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू J2 मुझे निकालना है इनटू R1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली दिस इज 4, तो J2 विल बी इक्वल टू 40। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो हो गया, आगे बढ़े। Yes. चलिए नेक्स्ट। तो ये तो हो गया हमारे करंट डेंसिटी पे डिस्कशन। अब इसके बाद और छोटे छोटे चीजों को डिस्कस करते हैं। तो सर नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट लिखिए ओम्स लॉ। ये तो हो गई हमारी करंट डेंसिटी। नेक्स्ट छोटा सा डिस्कशन, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है? यू मे हैव सीन दिस लॉ इन क्लास 10th आल्सो। Ohm's law simply says that for a conductor, if the temperature, length and everything of the conductor, that is कि अगर मान लो ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर का if you keep the length, area of cross section, the temperature and everything constant, then in that case, मेरी बात सुने बच्चे, then in that case अगर मान लो कि आप ये सेल इसके अक्रॉस अप्लाई करते हो, ठीक है, सेल का मतलब, ओह बच्चे बेटा सुनो, यहाँ पर अगर पोटेंशियल जीरो कह लूं तो यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर अगर V कह लूं तो यहाँ पर भी V होगा। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, क्या मैं V लिख सकता हूं या नहीं बेटे? बिकॉज कंडक्टर के दो एंड्स पे पोटेंशियल देखो, एक V है और दूसरा कितना है? जीरो, तो V माइनस जीरो विल बी इक्वल टू V। तो पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के अक्रॉस में जीरो लिख सकता, V माइनस जीरो इज इक्वल टू V लिख सकता हूं। अब ध्यान से सुनो ओम्स लॉ कहता क्या है, लिसन टू मी केयरफुली। अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, area of cross section of the conductor, temperature of the conductor and other physical conditions are kept constant, then in that case the current flowing through this conductor, मतलब इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो होगा, in that case that would be directly proportional to the potential difference applied across the two ends of the conductor। फिर से मेरी बात सुनो कि if length, area of cross section, temperature etc are kept constant, etc का मतलब other physical condition, मतलब like pressure and all those things kept constant, then current flowing through conductor is directly proportional to the potential difference applied across conductor। मतलब जितना आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा होगा। इसका मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और यहां से आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस, वेयर रेजिस्टेंस इज द प्रोपोर्शनल, दिस आर इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका अपना एक मतलब है और इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, अभी रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करेंगे, बट बिफोर दैट दिस is known as Ohm's law, that is delta V is equal to IR, and from this we can calculate something called as resistance, and resistance is delta V by I। ठीक है, रेजिस्टेंस का आपको आइडिया तो होगा ही। तो मुझे एक बात बताओ, does resistance depends on potential difference and current? Does it depends on these parameters?
क्या No. रेजिस्टेंस? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, बट इट नेवर डिपेंड्स ऑन दीज पैरामीटर्स। वो कुछ और ही पैरामीटर पर डिपेंड करता है जो हम आगे डिफाइन करेंगे इन चीजों को, ठीक है। बट दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस, जिसका आपको कुछ कुछ आइडिया होगा। एंड द यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस, यू नो दैट यूनिट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इज ओम्स, है ना। ओम, ओम इज द यूनिट, ठीक है। तो I'll define this resistance completely after this particular topic. Here I'm not defining the resistance, I'll be defining it later on in this chapter, ठीक है। but before that I'll discuss some more things. ये नोट कर लिया आप लोगों ने ओम्स लॉ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ओम्स लॉ में we even draw the graphs between the current and the potential difference. अब मुझे एक बात बताओ, what kind of graph will you get in the case of Ohm's law? what will be the graph between the potential difference and current? Linear. Obviously it will be very good, it will be a straight line. The reason is very obvious, because potential difference and current are linearly related, so the graph will be a straight line. Means कि अगर मैं इस point, इस end पे अगर मैं potential difference ले लूं और इस पे मैं current ले लूं, तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो it will be a straight line without any doubt. अच्छा बच्चे, एक बात सोचो कि अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप ले लूं, स्लोप आपने कभी सुना होगा, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, tan of that theta that the graph makes with horizontal line, उसको हम स्लोप कहते हैं। तो अगर मैं इसका स्लोप ले लूं, दैट इज tan थीटा, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? Perpendicular. Very good, perpendicular by base. And here on the perpendicular side we have current, and on the base side we have potential difference. तो current divided by potential difference, right? देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज रेजिस्टेंस। तो अगर हम करंट डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कर दें तो ये 1 अपॉन रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो एक काम करो, ऐसा कर लो, इसको उल्टा कर दो, इसको आप इधर पोटेंशियल डिफरेंस ले लो और इधर करंट ले लो, ठीक है। आप अगर ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दो कि यू टेक द करंट ऑन दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये वाला जो tan थीटा होगा उस केस में इट विल बी रिटन एज डेल्टा V बाय I, एंड दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? तो इसका एक छोटा सा मतलब है कि the slope of Ohm's law graph, या सिंपली आप कह सकते हो the slope of voltage current graph, the slope of voltage current graph, voltage current का जो ग्राफ है उसका स्लोप क्या बताता है सर? तो it simply gives you the value of resistance. क्लियर हो गई बात? Then Yes, sir. अब देखो बेसिकली अभी हम रेजिस्टेंस पे बात कर रहे हैं। अच्छा इस बार याद रखना कि इस बार के सिलेबस में द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इज एक्सक्लूडेड फॉर दिस ईयर्स सिलेबस। इस बार के सिलेबस में ना कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर जो आपने सुना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसको एक्सक्लूड कर दिया है इस साल के सिलेबस में, ठीक है। तो यू डोंट हैव दैट इन योर सिलेबस फॉर दिस ईयर, फॉर दिस सेशन। क्लियर? लेकिन Yes. एक, ठीक है, लेकिन एक चीज सुनो, एक चीज है, आपने सुना होगा कार्बन रेजिस्टर, बिकॉज we talked about the resistance, although we haven't defined the resistance yet. मैं रेजिस्टेंस को आगे डिफाइन करूंगा, बट एक चीज तो आपको आइडिया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टेंस व्हिच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये तो आपको मालूम ही है कि रेजिस्टेंस बेसिकली कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है which opposes the flow of current through the conductor. So you know about that, right? Without any doubt, you know about that. Anyways, but my point to you is, मेरा पॉइंट सुनिएगा, कार्बन रेजिस्टर। अब देखो बेटा, हैव यू सीन कार्बन रेजिस्टर इन रियल लाइफ? हैव यू सीन दिस कार्बन रेजिस्टर एवर? Yes. नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फॉर एग्जांपल आपका वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जैसे लैपटॉप हो या मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, अगर आप उसको तोड़ेंगे और उसको तोड़ के उसके सर्किट को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो उसमें आपको ये कार्बन रेजिस्टर दिख जाएगा। कार्बन रेजिस्टर होता कैसा है? तो देखिए कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। अगर आप इसको ना तोड़ के देखेंगे कभी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे, अगर देखो कहीं सर्किट दिख जाए, तो ऐसा कुछ शेप होता है उसका, ठीक है, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। ये बेसिकली रेजिस्टेंस सर्किट में प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं कार्बन रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर मेड अप ऑफ कार्बन, बेसिकली ग्राफाइट। समझ रहे हो आप?
क्यों यूज करते हैं कार्बन के रेजिस्टर को? क्योंकि एक तो पहली बात है कि इससे हम बहुत हाई रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, और दूसरा ये कि इसकी कॉस्टिंग बहुत कम होती है। ठीक है, इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, ये बहुत चीप होता है, चीप इन द सेंस ऑफ कॉस्ट, राइट? तो बिकॉज इट इज चीप, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आसानी से। तो ये हमारा कार्बन रेजिस्टर है। समझ में आ रही है बात? अब एवरी Yes. कार्बन रेजिस्टर विल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। हर कार्बन रेजिस्टर में डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस होते हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता था कि हम उसके रेजिस्टेंस उसके ऊपर लिख देते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि ये रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो हम उसके ऊपर लिख दें 100 ओम। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि हम उस पर कोडिंग कर दें। क्या कर दें? कोडिंग। जैसे अभी आपके जो भी प्रोडक्ट आप लेते हो आज की डेट में, उस पर अगर आप देखोगे तो उस पर कोड बने हुए होते हैं ना, बार कोड, जिसको एक वो मशीन रीड करती है और उसका इंफॉर्मेशन पता चल जाता है कि उसका रेट क्या है, उसका कॉस्ट क्या है, सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से कार्बन रजिस्टर ऑल्सो हैज कोडिंग ऑन इट। ठीक है, और उसको कार्बन कोडिंग कहते हैं हम, या कलर कोड कहते हैं ऑफ कार्बन रजिस्टर। क्या कहते हैं छोटे बच्चों? कलर कोड। Color code. ठीक है, अब कैसे कैसे कलर्स होते हैं तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब कुछ चीजें हैं जो मैं टेबल बना रहा हूं, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस टेबल, और याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये कलर कोड होता है जिसका आप कलर का अल्फाबेट यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, ये कलर का अल्फाबेट क्या क्या होगा वो लिखा जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं हम जिसको हम कहते हैं नंबर। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज यूज करते हैं विच इज फॉर द फोर्थ कलर, वो मैं लिख देता हूं आगे और सबको एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले तो आप इस टेबल को समझ लें। एंड द लास्ट थिंग इज कॉल्ड एज टॉलरेंस। क्या हुआ, कोई इशू है? कोई मुझसे कुछ कह रहा है? कोई मुझसे कुछ कह रहा है? क्या क्या कलर्स हम यूज करते हैं कार्बन रजिस्टर पे इन कोडिंग? तो देखो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, दिस इज ब्राउन, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, एंड द लास्ट इज व्हाइट। अच्छा, इसको याद रखते हैं हम लोग तो ऐसे रटते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ्स। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ्स। ठीक है, वाइफ्स है ना, नॉट वाइब, दिस इज वाइफ। ठीक, ऐसे रटते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ्स। तो आप भी चाहो तो ऐसे रट सकते हो। इसके नंबरिंग हम कैसे लेंगे? ब्लैक के लिए 0, ब्लैक के लिए नंबर क्या रहेगा? 0। ब्राउन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मल्टीप्लायर का मतलब है दीज नंबर रेज टू द पावर ऑफ 10। मतलब इसी नंबर्स को क्या कर दो, 10 के पावर पे लिख दो। 10 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 एंड सो ऑन। कहां तक चला जाएगा? 10 टू द पावर 9। क्लियर है? लास्ट जो कलर होता है, या तो कोई कलर नहीं होगा या दो कलर में से कोई सा भी हो सकता है। गोल्ड होगा लास्ट कलर, सिल्वर होगा, या नो फोर्थ कलर, नो कलर। ठीक है, कोई चौथा कलर होगा ही नहीं। मैं बताऊंगा क्या मतलब है किसका, अभी तो सिर्फ नोट कर लो। अगर गोल्ड होगा तो टॉलरेंस होता है 5%, सिल्वर होगा तो 10%, और कोई कलर नहीं होगा तो टॉलरेंस इज 20%। आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, बट पहले इतना नोट कर लो। ये टेबल नोट करो। हो गया सर। अब बात सुनिए, अगर आपने ये लिख लिया नो तो सर। अब मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, अब सुनिए, बेसिकली होता क्या है, ये जो कार्बन के ये होते हैं ना रेजिस्टर्स, तो उस पे हम क्या करते हैं, कलर कोडिंग कर देते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बोला है। और कितने कलर्स होते हैं?
तो 3 तो होंगे ही होंगे, देयर कैन बी फोर्थ और देयर कैन नॉट बी एनी फोर्थ कलर। अब तीनों के, अब पहली बात तो आप ये समझ लो, आपको ये समझ में आ रहा है जो आपके पहला कलर, मान लो कोई पहला कलर मैंने यहाँ पर बना दिया, फिर उसके बाद एक दूसरा कलर ले लिया, कोई सा भी दूसरा कलर ले सकता हूँ, ये दूसरा कलर मान लो, ये दूसरा कलर, फिर तीसरा कलर मैंने ब्लू ले लिया, ऐसा कुछ, और कोई मैंने फोर्थ कलर नहीं लिया, मान लो ये मैंने कोई कार्बन रेजिस्टर बनाया और इस पे 3 कलर ऐसे मैंने इंडिकेट कर दिया, ठीक है। तो इसमें याद रखना जो फर्स्ट कलर है ना, वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। ये जो फर्स्ट कलर है, ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट करेगा। कैसे करेगा वो मैं बताऊंगा। फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यू मे हैव हर्ड अबाउट सिग्निफिकेंट फिगर इन क्लास 11th। क्लास 11th का ये पहला ये चैप्टर है, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये डिफाइंड है। इसको क्या करता है, ये सेकंड कलर क्या करता है, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। और थर्ड कलर क्या देता है, तो थर्ड कलर गिव्स यू द मल्टीप्लायर। थर्ड कलर का क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लायर। थर्ड कलर का जो मल्टीप्लायर वैल्यू है वो यूज करते हैं। और फोर्थ कलर क्या बताता है, तो फोर्थ कलर अगर है या नहीं है, तो फोर्थ जो है वो टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है, टॉलरेंस। बोलो, फोर्थ क्या बताता है, टॉलरेंस। अब टॉलरेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब समझ लो। फोर्थ अगर होगा, फोर्थ कलर और फोर्थ नो कलर, या तो कलर होगा या नहीं होगा, इंडिकेट्स टॉलरेंस। ये टॉलरेंस बताता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज टॉलरेंस, तो टॉलरेंस में सिंपल सा मतलब याद रखो कि टॉलरेंस गिव्स यू द परसेंटेज वेरिएशन ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रेजिस्टर का, ये किसी गिवन कार्बन रेजिस्टर का रेजिस्टेंस मान लो 100 ओम है, तो उस 100 ओम की वैल्यू में वेरिएशन कितना हो सकता है, तो 20% का वेरिएशन हो सकता है। मतलब 20% उसकी वैल्यू या तो ज्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, या ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है, ये वेरिएशन उसमें आ सकता है। नहीं यही बात समझ में। अगर मैं कहूं कि फोर्थ कलर गोल्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि टॉलरेंस की वैल्यू कितनी होगी, 5%। इसका मतलब है कि उस रेजिस्टर के रेजिस्टेंस में या तो 5% ज्यादा इंक्रीज आ जाएगा या 5% डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। बट उससे ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज पॉसिबल नहीं है। तो फिर से मेरी बात सुनो, फर्स्ट कलर गिव्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड कलर गिव्स सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड कलर गिव्स द मल्टीप्लायर एंड द लास्ट वन गिव्स यू द टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब समझ में आ गया कि जैसे मैं आपसे कहूं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं कि कोई क्वांटिटी है विच कैन चेंज बाय 10%, इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी मैक्सिमम कितना चेंज कर सकती है, 10% चेंज कर सकती है। इज इट क्लियर, प्लीज टेल मी। पता नहीं सर, नो रिस्पॉन्स। अब देखो, ये फर्स्ट कलर, ये सेकंड कलर, ये थर्ड कलर, तो रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनो। फर्स्ट कलर का नाम बोलो, क्या है फर्स्ट कलर, Black. ब्लैक। तो व्हाट इज द नंबर फॉर ब्लैक, 0. वेरी गुड। ब्लैक कम्स एट द टॉप, तो जीरो। तो जीरो लिखो मत लिखो, क्योंकि दिस जीरो इज द इनिशियल जीरो, तो वेदर यू राइट दिस जीरो और नॉट डजंट मैटर, पर फिर भी मैं लिख देता हूं जीरो। सेकंड कलर इज व्हाट, सेकंड कलर इज रेड। व्हाट इज द नंबर फॉर रेड, 2. 2, तो write the 2. Third color gives you what, third color gives you Blue. multiplier. So what is the multiplier for blue, 6. 10 raised to power 6. 10 to the power 6, ठीक है। Is there any fourth color, sir? No fourth color. So what we will write after this, we will write plus minus of 20%. इसका मतलब if anybody asks you कि what is the net resistance, तो you will simply write the resistance of this coded carbon resistor as 2 into 10 to the power 6 ohm plus minus of 20% tolerance। ये ऐसे लिखते हैं। समझ आ गया सबको? Yes, sir. Sir, why 20%? Because there is no fourth color, beta. Okay, sir. हो गया? Yes, sir. ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी से। देखो, if I take the another example के let's say there is again a carbon resistor like this and I take the colors as, मान लो कि I am taking the first color as blue
Then we have the second color, which is red. The third color is green. I have taken all the possible colors. ठीक है, और the last color is, let's say the last color, ये जो last वाला color है, it is gold. ठीक है, you have to write the resistance of this. क्या आएगा resistance? First is blue. So first color represent first significant digit, second color represent second significant digit. The third color gives you the multiplier, and the fourth color gives you the tolerance. (62 into 10 raised to power 5 plus minus 5%. Very good. Black के लिए significant digit is 6, red के लिए significant digit is 2, so 62. The green one is having a multiplier of 10 to the power 5. ठीक है, this is your resistance, this much of ohm, and then plus minus, because the fourth color we are having as gold, so this will be equal to 5%. So this will be the value of resistance. This will be the value of resistance for this. ठीक है, आगे बढ़े. Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving on. So this till now we have discussed about the Ohm's law. I'm not going to give you any question based on Ohm's law, because Ohm's law is a very basic thing. The question based on this kind of Ohm's law is asked in class 10th. So I'm not going to discuss questions or very basic level of questions based on Ohm's law in the class 12, because there are plenty of things from where the question will be asked. So इसीलिए मैं Ohm's law पे कोई numerical problem नहीं करा रहा हूँ. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखे mechanism of current flow in a conductor. Mechanism of current flow in a conductor. Mechanism of current flow in a conductor. ये derivation important है. It may be asked in your exam. So listen to it carefully. And yes, this derivation is not a very typical type of derivation or not very difficult to remember. तो इसलिए इसको याद रखो. मैं आपको mechanism बता रहा हूँ कि how does the current flows in a conductor. एक बात समझो. All the students listen to me. Sonam, Diangmo, Siring, Nilza and Stanzin. एक बात बहुत अच्छी सी बात, एक सीधी सी बात सुन लो. ये जो मैं जो भी बता रहा हूं अभी, ये याद रखो कि एक पॉइंट याद रखना कि अभी जो भी मैं बता रहा हूं, दिस इज अ थ्योरी विच एक्सप्लेन्स द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर. फिर से सुनिए, दिस इज अ थ्योरी, या इसको मैं बहुत अगर लेमैन टाइप से कहूं तो दिस इज अ स्टोरी which is going to explain you the flow of current in a conductor. But yes, practically किसी ने ऐसा होता हुआ देखा नहीं है. No one has seen it experimentally or no one has seen it practically कि ऐसा ही हो रहा है, जो मैंने कहानी बनाई है ऐसा ही हो रहा है. नहीं नहीं, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया तो उसके बेस को समझाने के लिए हमने ऐसी कहानी बना दी. तो मैं समझ में आ रही बात. कभी हम कोई चीज देखते हैं ना, तो उसको समझाने के लिए हम अपना दिमाग चलाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा. So this mechanism that I am going to explain you is a story which explains the flow of current. और because ये story ऐसी है जो करंट के फ्लो को हमें एक्सप्लेन कर देती है, that is why we are going to discuss this. और इसी को हम बोलते हैं mechanism of flow of current. तो पहले तो बेसिक पॉइंट सुनिए. You all know very well that ड्राइव मैं कल करूंगा, बट आज सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं. आप एक बात सुनिए कि if you have a conductor, so you all are aware of the fact that electrons always moves inside a conductor freely in all possible direction. Am I right? Yes. Tell me. Yes, sir. Of course, they flow in all possible direction. But what happens in these circumstances? Whenever the current flows, electron flows in all possible direction, what happens? They keep on colliding with each other, or they keep on colliding with the atoms or the ions of the conductor, and hence we assume that there is not a single electron is there which goes from one end of the conductor to another end. फिर से मेरी बात सुनो. अगर हमने कंडक्टर के साथ कुछ भी नहीं कनेक्ट किया है, वी हैवंट कनेक्टेड एनी सेल और अ बैटरी, और कोई प्लग हमने इसके साथ कनेक्ट नहीं किया है. सुनो मेरी बात,
there is dog barking at someone's place, so kindly either, हाँ, thank you. तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स, हमें एक बात मालूम है ना कि इफ दिस कंडक्टर इज नॉट कनेक्टेड टू एनी एक्सटर्नल सोर्स, ऑब्वियसली करंट विल बी इक्वल टू 0. अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें, क्योंकि हमें तो ये मालूम है कि सर इलेक्ट्रॉन तो ऑलवेज फ्लोज इनसाइड अ कंडक्टर एंड स्टिल आई एम गेटिंग द करंट टू बी 0. तो कैसी कहानी बनाएं हम? तो हम ये कहानी बनाते हैं और हम ये मानते हैं, दिस इज आवर असम्पशन, कि इन दिस सिचुएशन व्हाट हैपेंस कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली मूव्स, but they moves in all possible direction, and hence they collide with each other as well as with the atoms of the conductor, and finally what happens कि there will be no electron which goes from one end of the conductor to another end. तो हम ये कहते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, there is no current that will flow into the circuit. क्लियर है सर? अब आपको अगर ये बोला जाए कि now the point is like this, कि अब मान लो कि मैंने इस कंडक्टर के साथ if I connect a external source, ऐसे मैंने एक एक्सटर्नल सोर्स इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है? तो अब बेटे इस एक्सटर्नल सोर्स को अगर हमने कनेक्ट कर दिया, सोर्स मतलब सेल का वोल्टेज V है, तो देखो जहां पर आप वोल्टेज कनेक्ट करोगे वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी. आपको याद होगा कि पोटेंशियल होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी. अब मुझे कौन बच्चा बताएगा बेटे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन? विल दे एक्सपीरियंस force or not? Yes, sir. And what would be the direction of that force? Opposite In to the Opposite to the direction of electric field. field. Very good. So all these electrons will start moving in this direction, in a particular direction. देखो अभी भी इनके collision हो रहे होंगे. They will still be colliding with the atoms and the ions of the conductor. It will still be colliding, but because all the electrons are going in the same direction, ठीक है, in a patterned way, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन तो होगा जो यहां से यहां तक पहुंच पाए, है ना? तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्चुअली में एक एंड से दूसरे एंड पे पहुंच पाएंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल सेल. क्लियर हो गई बात? एंड हेंस वी विल गेट अ करंट इन द सर्किट. समझ रहे हो आप? Yes. ठीक है. तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई एक्सटर्नल सोर्स या सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें करंट मिलता है, हमें करंट फ्लो होता है सर्किट में, या कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है. इसीलिए सेल इज अ नेसेसिटी फॉर द फ्लो ऑफ करंट. इसीलिए विदाउट सेल करंट फ्लो नहीं होता. क्लियर हो गई बात? तो दिस इज द मैकेनिज्म. अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या these electrons are provided by the cell or these are the electrons of the conductor itself, तो क्या कहोगे? Conductor is conductor is the कोर्स कंडक्टर itself. तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल क्या कर रहा है फिर, तो आप ये कह सकते हो कि सेल इज प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन्स द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड. या दूसरे तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि सेल मेक्स द इलेक्ट्रॉन मूव इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, such that electron moves or drifts from one end of the conductor to another end just because of the cell. Is it clear? yes. yes. Yes, अब sir. इसमें कुछ चीजें आती हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, रिलैक्सेशन टाइम है और इस तरह के पॉइंट्स हैं. दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास व्हिच इज ऑन टुमारो. आज इतना ही रहने दो. कल अब इसके हम फाइनली मैथमेटिकली ड्राइव करेंगे और कुछ रिजल्ट्स हम इससे ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, तो आज इतना ही सर. Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन. आई एम डिस्कनेक्टिंग नाउ.